پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی انٹری 11ویں ایڈیشن میں 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔ نیلامی کی تقریب میں پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین کی ایف کے ایس نے 7ویں ٹیم کے لیے 1 ارب 75 کروڑ کی سب سے بڑی بولی لگائی اور ٹیم کو حیدرآباد کا نام دیا۔ اوزی گروپ نے 8ویں ٹیم 1 ارب 85 کروڑ میں خریدی اور سیالکوٹ کا نام چنا۔ چیئرمین محسن نقوی نے دونوں ٹیم اونرز کو چابی سونپی۔ پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسڈر وسیم اکرم نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریب میں ایمرجنگ ایشیا کپ کی فاتح پاکستان شاہین کو 9 کروڑ اور ہانگ کانگ سکسز کی جمپن ٹیم کو 1 کروڑ 85 لاکھ روپے کی انعامی رقم دی گئی۔ نیلامی کے بعد شعراء آفاق گلوکار راحت فتح علی خان کی سپر ڈوپر پرفارمنس۔ آج صرف ایک بولی نہیں لگی بلکہ پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی فواد سرور اور حمزہ مجید کو مبارکباد، کہا 2 نئی ٹیموں کی شمولیت تاریخی لمحہ ہے۔ پی ایس ایل ٹیموں کے لیے آسٹریلوی اور امریکی کمپنیوں نے بولی میں حصہ لیا۔ حیدرآباد کے اونر پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین فواد سرور نے کہا، خواب کو حقیقت میں بدلتے دیکھ رہا ہوں۔ بچپن میں حیدرآباد میں کرکٹ کھیلی، طے کیا تھا کہ ٹیم کا نام حیدرآباد ہوگا۔ سیالکوٹ کے اونر ای زیڈ گروپ کے حمزہ مجید نے کہا، کرکٹ ہمارا جنون ہے، اس کے لیے کام کریں گے۔ سیالکوٹ کے پاس ایئرپورٹ اور ایئر لائن تھی، اب کرکٹ ٹیم بھی آ گئی۔ کراچی کنگز کی دونوں نئی ٹیموں کو مبارکباد۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، یہ پی ایس ایل میں نئے دور کا آغاز ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی نئی ٹیم اونرز کو مبارکباد، کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں اور محسن نقوی کو مبارکباد، کہا 2 نئی ٹیموں کی شمولیت نے سپر لیگ میں ایک نئی روح پھونک دی۔ وقت کے ساتھ پی ایس ایل خطے کی بڑی لیگز میں سر فہرست آ گئی۔ نئی ٹیموں میں بیرونی سرمایہ کاری پی ایس ایل کی بین الاقوامی سطح پر مقبولیت کا ثبوت ہے۔ قومی سلامتی کو خطرات سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیک لاہور گیریزن میں افسران سے خطاب، کہا ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ مستقبل کی جنگوں سے متعلق تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور دیا۔ جوانوں کو فراہم کردہ کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا۔ ملک اور قوم کی سلامتی سے کھلواڑ کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ فتنے کی سرکوبی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، کچھ لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا، احتجاج کے نام پر ریاست کو احتمال بنایا۔ فتنے کی سرکوبی صرف حکومت کا کام نہیں، علماء کی معاونت بھی ضروری ہے۔ پنجاب میں خطیبوں کو 32,000 کا اعزازیہ ملنا شروع ہو گیا۔ اور امریکی سینٹ میں وینزویلا میں مزید فوجی اقدامات کے خلاف قرارداد بحث کے لیے منظور۔ قرارداد کے حق میں 52 ووٹ اور مخالفت میں 47 ووٹ آئے۔ قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید فوجی اقدامات سے روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ کو وینزویلا میں فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لینا ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 ارکان نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ صدر ٹرمپ ناخوش، کہتے ہیں قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکنز دوبارہ منتخب نہیں ہونا چاہیے۔ وینزویلا نے امریکی حملے میں 100 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی۔ وزیر داخلہ وینزویلا کا کہنا ہے، حملہ خوفناک تھا، صدر مادورو اور ان کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا قومی فریضہ ہے۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا، ہم نے دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی۔ یہ کہنا کہ ہم نے تعاون نہیں کیا مناسب نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کا ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی حکومت کی اپنی کمیٹی ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے، اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بے وقوف ہی دہشت گردوں کا ہمدرد ہوگا۔ اداروں اور عوام میں خلیج سے استحکام نہیں آ سکتا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ لاہور پہنچ گیا۔
महमूद अचकजई कहते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करेंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जब आइन की बालादस्ती होगी। हम इस रोड से आए जिस पर नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ खानदान को कहता हूं हमारे साथ मिलकर दोबारा उस नारे को तक़वियत दो। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं महमूद अचकजई बात करना चाहते हैं लेकिन पीटीआई नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन दूर करे, किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। हुकूमत सिंध ने पीटीआई को कराची के बाखिर जिनाह में जलसे की इजाजत दे दी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में नासिर हुसैन शाह ने कहा रोड पर नहीं बाग जिनाह में जलसे की इजाजत दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी केपी हुकूमत शफी जान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा अच्छी बात है, पंजाब हुकूमत जैसी तंग नजरी का मुजाहरा नहीं किया गया। रहे शहबाज शरीफ और हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए। मेरा और शहबाज साहब का पुराना साथ है, जो मर्जी कर ले इख्तिलाफ नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत है जो चीज कहें वो हर सूरत पूरी करें। एहतजाज आईनी हक है, मुल्क में बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशत गर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्जामात इसके अमन दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकते। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से दुश्मनी वाला रवैया नहीं चाहता। हमारा सादा सा मुतालबा है अफगान सरजमीन दीगर ममालिक में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ईरान के मामलात में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत का मुखालिफ है। सोमालीलैंड से मुतालिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये सोमालिया को तकसीम करने की साजिश है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी अस्करी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ ने रियाद में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सरबराह पाक फजाइया का अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा। एयर चीफ ने कहा मई 2025 की जंग के दौरान कला, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, साइबर, मखसूस टेक्नोलॉजीज और मसनूई जहानत के डोमेन्स का इस्तेमाल फैसला कुन साबित हुआ, जो पाक फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियत, मवाफ़क़त और अस्करी तासीर की अक्कासी करता है। भारत के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। अमेरिका की रूस से तिजारत पर भारत समेत दीगर मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है मुलाकात में सदर ट्रंप ने रूसी पाबंदियों से मुतालिक बिल की मंजूरी का इशारा दिया है। मॉस्को से तिजारत पर भारत, चीन और ब्राजील को मजीद टैरिफ की सजा दी जाएगी। बिल पर मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते वोटिंग हो सकती है। भारत नहीं जाएंगे, खिलाड़ियों को खतरे में नहीं डालेंगे, बांग्लादेश डट गया। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइजर कहते हैं वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्क के वकार से बढ़कर कुछ नहीं। बीसीबी आईसीसी को दोबारा खत लिखेगा। भारत में हमारे खिलाड़ियों के साथ मदा और सहाफी भी महफूज नहीं। साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान जेसन होल्डर भी भारत के क्रिकेट में सियासत लाने पर नाला। कहते हैं भारत एशिया कप जीता लेकिन ट्रॉफी लेने स्टेज पर नहीं गया। क्रिकेट में ऐसी सोच या रवैया नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ लीग्स में भारतीय फ्रेंचाइज ओनर्स की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं किया जाता, ये मायूस कुन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पंचकोर में कार्रवाई, दहशतगर्द साजिद अहमद गिरफ्तार। मुलजिम बड़ी तादाद में असलहा पंचकोर से तुर्बत मुंतकिल कर रहा था। डीआईजी सीटीडी बलूचिस्तान एतजाज बुराया ने बताया साजिद का बलूचिस्तान यकजहती कमेटी से राब्ता था। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द कलदम तंजीम का मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करता था। खारान का रिहायशी सरफराज दहशतगर्द जहांजेब उर्फ मेहरबान और बेजल भी गिरफ्तार।
कराची में तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट 100 दिन में मुकम्मल करने का हदफ। 2026 तरक्याती मंसूबों का साल होगा। रेड लाइन के मुख्तलिफ फेज मार्च और जुलाई में खोल दिए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जहांगीर रोड और नाथा खान पुल से पहलवान गोट तक सड़क के लिए 1 अरब 10 करोड़ रख दिए। मुर्गी खाना फ्लाई ओवर पर मार्च में काम मुकम्मल हो जाएगा। शाहराह भुट्टो से एयरपोर्ट के रास्ते पर नया फ्लाई ओवर तामीर किया जाएगा। कराची पर 46 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे पास फंड्स मौजूद हैं, काम नहीं रुकेगा। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सिंध हुकूमत और वफाक में रेलवे के अहम मंसूबों शुरू करने के लिए शराकतदारी पर इतफाक। मुराद अली शाह ने रेलवे मंसूबों के लिए 6.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। हुकूमत सिंध की तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बैनुल इजलाई ट्रांसपोर्ट और स्कूल और कॉलेज की गाड़ियों में गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों में इमरजेंसी एग्जिट फर्स्ट एड बॉक्स लाजमी होगा। हिदायत की अदम तामील की सूरत में गाड़ियां जब्त की जाएंगी। पीआईए का लाहौर से भी लंदन फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज 30 मार्च को लाहौर से लंदन रवाना होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक 6 साल के वक्फे के बाद परवाजों का आगाज किया जा रहा है। बरतानिया के लिए पीआईए की परवाजों की हफ्तावार तादाद 7 हो जाएगी। इस्लामाबाद से लंदन की परवाजें 29 मार्च से शुरू होंगी। पाकिस्तान से ईरान की बंदरगाह चाबहार तक पहली फेरी सर्विस आइंदा हफ्ते से शुरू होगी। कराची से 240 मुसाफिरों को लेकर चाबहार जाएगी। कराची पोर्ट से चाबहार तक सफर का दौरानिया 12 से 14 घंटे होगा। फेरी सर्विस चाबहार के लिए हफ्ते में 3 राउंड ट्रिप करेगी। राउंड ट्रिप किराया 50,000 रुपए होगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए, 30 अफराद जख्मी। लर्दगान शहर में दुकानदार भी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए, पुलिस पर पथराव किया। बाज मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। सरहदी सूबा शुमाली खरासान के शहर बजनूद में दुकान को आग लगा दी। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। मिनियापोलिस में छापे के दौरान फायरिंग से खातून की हलाकत। खातून पर अहलकारों को गाड़ी से कुचलने का इल्जाम। सऊदी ट्रंप कहते हैं ऐसा लगता है अहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने लिखा ट्रंप झूठ बोलते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने वाक़े को जालिमाना और गैर इंसानी करार दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने दबोला में पहला मुकाबला बासानी 6 विकेट से जीता था। शादाब खान ने कमबैक मैच में ऑल राउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया।